Good morning. Management of I am talking about the wastewater treatment. Wastewater treatment. In this class, I am going to tell you the important topic. Sir, which I am going to be. Which is I am going to and this was from the English passage English passage. I will give you very about that. Listen. Is the residue of chemical, biological, and physical treatment of physical treatment of physical treatment of Issues in this starting video, just starting video. But what is starting investigation? Very nice. Starting video, I want to say, well, make only one document. Just start the video. I want to just move your this button and start. I want to say
I want to see each and every one of this. Aryan, I want to see each and every one of these. Aryan, start the video now. Look at it. Initially, Asif, The crystal field theory. I want to see anyone whether they are writing or not. So, chemical values is the principal sequence of after the list of the chemical values The crystal field. wastewater treatment plant. If you ask for the wastewater treatment plant, उसमें पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तीसरा था टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था? सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो आपका कंप्लीटली डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ आयरन ट्रीटमेंट takes place with the help of IV and the tertiary treatment takes place with the help of some chemicals that are protein and also takes place with the help of ultraviolet rays. So it is all about the blood. All about the Crystal field theory. Understanding this problem. No. Okay, fine. Today's topic is crystal field theory. The ligands are assumed to be point charge. First point है Just note down this page. I'm going in the next page. the Whatever I have told you in the previous class, whatever I have told you in the previous class about the ligands are assumed some unwanted prices coming, so I'm going to make it call. the ligands are assumed to be Organic materials, the ligands are assumed to be organic matter, point charge. nitrogen, Point phosphorus, nitrogen, phosphorus. The ligands are assumed to be point charges. Organic salts and minerals. The ligands are assumed to be point charges. The ligands are assumed I will discuss about the organic to be point which will discuss. Organic charges. nitrogen, ठीक है, phosphorus. दूसरा पॉइंट है I cannot this comes because I want to enhance your academics. the interaction between point charges. Show me now. The in the interaction between point charges. Point charges
charges You are near to answer, and but it is not a complete answer. the electron Ashit Kumar, and the you tell me. Ashit Kumar, you tell me the answer. Unmute yourself. Unmute yourself, electrons Ashit Kumar, and tell me the answer. electrons of electrons Take it. of central metal No. You are near to answer the question, but it is not a complete answer. central metal I will discuss this class. It is very interesting. This class is going to be very interesting. central metal are electrostatic in nature. Electro is Organic in just write down. The most important organic matter nature. refers to large source of large source of large source of The interaction between point charges and the electron of central metal are electrostatic in nature. तीसरा पॉइंट है the 5d orbitals the 5d is naturally on the carbon group orbital the 5d orbitals the 5d orbitals in an the 5d orbitals in an isolated in an isolated gaseous metals gaseous metals gaseous gaseous gaseous
Carbohydrates. Carbohydrates. metals, दूसरे example ions, proteins and ions have ions उसके बाद आपका है vitamins. एक आपका vitamins इस आपका have the same energy, have the yes. same energy, same energy, that is they are degenerates. They are degenerate. That is degenerate. Negative charges surrounded the metal ion. चौथा पॉइंट है चौथा है नेगेटिव चार्जेस charges negative charges surrounded negative charges charges surrounded SU double R O negative charges surrounded the metal ion. The metal ion पांचवा है in the most of the transition metal in most of the transition metal any difficulty in these spaces, raise your hand and ask me the question. Yes, arts. Do you have any difficulty? Just tell me to say arts. metal complexes
complex, complex, complexes of six of six or four ligands or four ligands, four ligands surrounded surrounds four ligands surrounds by central central metal एक gives it gives rise to octahedral or tetrahedral structure. Rise to octahedral or tetrahedral structure. Tetrahedral structure.
You are wrong. Everything. I know I'm going to take it free. Very good. dx square y square d x square dx square y square dz square d dz square नीचे है dxy dyz dzx dxy dxy dyz dyz और dzx dzx d ऑर्बिटल इन फ्री आयन ये आपका क्या एनर्जी d orbital in free ion d orbital
orbital in three ion. डी ऑर्बिटल का डिजेनरेट सेल कितना होता है? 5 होता है, इसलिए 5 लाइन दिया हुआ है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी डी जेड स्क्वायर. एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड. एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, यह है आपका एवरेज एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. एवरेज एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. रेहान खलील जो है बार बार अच्छा है अपने यहाँ। इसको आउट कर दिया. हाँ ले लीजिए, डांट दीजिए, अगले दिन से नाम के साथ अपना क्लास सेक्शन में रख जाएगा। सैम खलील है हाँ हाँ बोलिए, नाम के बाद आएगा हाँ. एक मिनट बाद बोलिएगा, क्लास सेक्शन में रखता हूँ। जो भी बच्चा एंट्री कर रहे हो अपना नेम क्लास सेक्शन रोल के साथ आओ, ठीक है. एवरेज एनर्जी ऑफ the d orbitals, स्प्लिटिंग ऑफ. जो भी बच्चे इन कर रहे हैं अपना नेम रोल सेक्शन क्लास के साथ आइए. Splitting of d orbital in an octahedral crystal field. Splitting of d orbital in an octahedral crystal field. Splitting splitting of the or the splitting of d orbitals in an octahedral
octahedral crystal field. Crystal field. A splitting of d orbitals in an octahedral crystal field. देखो d ऑर्बिटल का कितना ओरिएंटेशन होता है, 5 होता है, इसलिए 5 लाइन दिया हुआ है. dxy कौन कौन होता है, dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर. थोड़ा सा एनर्जी मिलने पर क्या होता है, यह ब्रेक कर जाता है दो भाग. नीचे वाला का एनर्जी कम होता है, इसको कहते हैं T2G सेट, और ऊपर का एनर्जी ज्यादा होता है, उसको कहते हैं EG सेट. और दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है वह 10dq होता है. ठीक है, और डेल ओ लिख दिए, इसका मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल. यहाँ पर हम लिख दिए देखो, कल पढ़ाए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आज तुम्हारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है डी ऑर्बिटल का कितना ओरिएंटेशन होता है. डी ऑर्बिटल का 5 ओरिएंटेशन होते हैं. कौन कौन, dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर. यह एनर्जी मिलने के बाद ये दो भाग में स्प्लिट करता है. नीचे वाला भाग का एनर्जी कम होता है, इसको कहते हैं T2G सेट, और ऊपर को कहते हैं EG सेट. T2G सेट या EG सेट क्या है, यह स्पेक्ट्रल टर्म है. नीचे का एनर्जी कम होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसको भरता है, तब जाकर EG सेट में भरता है. ठीक है, और यह जो लाइन दिया हुआ यह एनर्जी है, और यह 5 लाइन दिया हुआ है डी ऑर्बिटल इन 3 आयन, और बीच में जो है वह एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल है, और इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, T2G सेट और EG सेट. ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. तो वही सारी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट वाइज. ठीक है, The ligands are assumed to be point charge. Ligands किसे कहते हैं, लिगांड उसको कहते हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो and which can donate lone pair electron to central metal atom. तो उस पर क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है. दूसरा है the interaction between point charge and the electron of central metal are electrostatic in nature. पॉइंट चार्ज और सेंट्रल मेटल एटम यह क्या होता है, दोनों प्लस माइनस मिलने के बाद क्या होता है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हो जाता है. जैसे मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं. और लिगांड है, लिगांड के पास क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एंड विच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम. तो लिगांड और सेंट्रल मेटल एटम और आयन मिलकर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा न्यूट्रल हो जाता है. नेक्स्ट है आपका द 5d ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन हैव द सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डिजेनरेट. इसको कहते हैं डिजेनरेट सेल. डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितना होता है, 5 होता है. पांचों को मिलाकर एक साथ हम एक वर्ड में कहते हैं डिजेनरेट सेल. नेगेटिव चार्जेस सराउंडेड द मेटल आयन. नेगेटिव चार्ज जो होता है मेटल आयन के चारों तरफ छाया रहता है. और अगर किसी कंपाउंड में इन द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 6 or 4 ligands surrounded by central metal in gives rise to octahedral
और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर लिगांड की संख्या 6 होगी तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल का ही दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल एंड ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर 4 होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लिगांड की संख्या 4 होगी तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। हेलो आदर्श आनंद, हेलो हेलो यस आदर्श सर। आनंद, यस समझ सर। में आया, कुछ समझ में आया? यस सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। VVT, वैलेंस बॉम्ब थ्योरी और एमओटी, आज पढ़ाए एमओटी। ठीक है, यस सर। तो याद कर लेना। यस इसी सर। तरह से आएगा आपको कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ CFT, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी का कितना पोस्टुलेट है, एक्सप्लेन दिस सुटेबल डायग्राम। समझ गया यस सर। आदर्श आनंद? और कुछ पूछना है? यस। नो सर, आ गया समझ। आ गया समझ, ठीक है, थैंक यू। उतारा है कि यस नहीं सर, उतारा है? उतार लिए। हाँ ठीक है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर, नो सर। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर से समझा देते हैं। द लिगांड्स, देखो सबसे पहले लिगांड क्या है? लिगांड हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगांड उसको कहते हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वह सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया? जैसे NiCO2 में निकल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और CO क्या है? लिगांड है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द लिगांड्स आर एज्यूम्ड टू बी पॉइंट चार्ज। दूसरा है कि लिगांड के पास इलेक्ट्रॉन है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। और मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, तो उसके पास प्लस चार्ज होगा। तो हमको मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि डी ऑर्बिटल, तो कितना डीजेनरेट सेल होता है? 5 होता है, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यह सबको एक साथ मिलाकर कहते हैं डीजेनरेट सेल। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वह मेटल एटम के चारों तरफ छाया हुआ रहता है, क्योंकि लिगांड छाया हुआ रहता है। तो लिगांड क्या है? नेगेटिव चार्जेज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी होती है। उसके बाद है कि अगर किसी कंपाउंड में if the complex compound having number of ligand is equal to 6, then it shows octahedral orientation और square by pyramidal orientation, and number of ligand की संख्या 4 होगी तो इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होगा।
ठीक है, कोई यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि डी ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट सेल होते हैं, इसलिए 5 लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद बीच वाला क्या है, एवरेज एनर्जी है, और यह ब्रेक करता है दो भाग में, T2G सेट और EG सेट। यह सब क्या है, स्पेक्ट्रल टर्म है। कोई पूछे T2G सेट क्या है, EG सेट क्या है, तो आप कहिएगा कि यह स्पेक्ट्रल टर्म है। T2G सेट का एनर्जी कम होता है, इसलिए यह डाउनवर्ड में लिखा गया। इसमें DXY, DYZ, DXZ होता है। EG का एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और यह होता है DX² Y² और DZ², और दोनों के बीच की दूरी जो होती है वह 10 dp होता है। और डेल O मीन्स हुआ ऑक्टाहेड्रल, डेल T मतलब टेट्राहेड्रल। तो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल शेल। ओके, और इतना ही रहने देते हैं।